Good afternoon, students. In the previous video we were discussing this exercise and now we have to discuss question number 3, what is meant by the term chemical formula. So in the chemical formula we represent a chemical compound with the help of chemical symbols along with the number of atoms written as a subscript of different elements, right? Question number 4, how many atoms are present in a H2S? So now here 2 atoms of hydrogen, 1 of S, to total number of atoms are 3. PO4 minus 3 is the valency and number of atoms are 1 P and 4 oxygen, total number 5. So this is a polyatomic negative ion. Now come to the next topic, molecular mass and mole concept. We will discuss this particular topic in two heads. Number 1, molecular mass, and second is mole concept. Molecular mass, as usual, with the help of atomic mass unit, and just like the atom, you can atomic mass, you can define the molecular mass. That is mass of the molecule by which it is number of times heavier than the 1/12 mass of C12 isotope. That is the molecular mass. It may be in fraction because it includes all isotope present in that element naturally. Or another important point, how can we calculate that? So see example 3.1, calculate the relative molecular mass of water. इसके लिए आपको क्या करना है, हाइड्रोजन क्या 1 एटम है, हाइड्रोजन की 2 एटम है and its mass 1, so multiply these two, so you get 2, and oxygen 1, so 2 plus 16, that is 30, that is 18, right? The solution is given to you. And second is calculate the molar mass of molecular mass, or not molecular mass of nitric acid, H1 and 14 O16 multiplied by 3, total is 63. अब एक बात का ध्यान रखिए, मोलिकुलर मास मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इसकी यूनिट जो है वो AMU या U, AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड U इज यूनिफाइड मास. दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला यूनिट मास. इसको ध्यान से समझिए. जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसका जितना बड़ा क्रिस्टल है वो उसका 1 मॉलिक्यूल है, तो साइज़ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला वेरिएबल हो जाएगा, जिससे कि कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी आएगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो भी रेशियो होता है डिफरेंट आयंस का, उस रेशियो का मास जो है वो फॉर्मूला यूनिट मास हम कंसीडर करेंगे. इज फॉर स्टडी. फॉर एग्जांपल इन सोडियम क्लोराइड ratio of sodium ion and chloride ion is 1:1. So 1 unit is NaCl and mass of NaCl, that is 23 plus 35.5 is equal to 58.5 is the formula unit mass for the sodium chloride. Similarly calcium chloride Ca40, chlorine 35.5, तो CaCl2, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम और क्लोराइड आयन का रेशियो कैल्शियम क्लोराइड में 1:2 का है, दैट्स वाई इट्स फॉर्मूला यूनिट इज CaCl2 एंड मास बिकम 71 प्लस 40, दैट इज 111, राइट? इस तरीके से हम इसको कंसीडर करते हैं. सेम एग्जांपल इज 3.2. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. कैलकुलेट द मॉलिकुलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन. सो 1 × 2, 1 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकॉज 2 एटम्स आर देयर, सो इट is equal to 2U. Oxygen 16 × 2, that is 32U. Chlorine 35.5 × 2, that is 71U. CO2 12 plus 16 × 2 is equal to 44U. Methane 16 plus 1 × 4 is equal to 16. 12 plus 1 × 4 is equal to 16. That is 1 × 4 is equal to 16. So 16U. C2H6 12 × 2 plus 1 × 6, that is 30U. C2H4 12 × 2 plus 1 × 4, that is 28U. Next ammonia 14 plus 1 × 3 is equal to 17. Methanol 12 plus 3 1 × 3 3 plus 16 plus 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 plus 2 8 9 10 11 12. It is around 42. We can calculate this one is in this way.
CH3OH 12 plus 1 into 3 plus 16 plus 1 12 plus 4 plus 16 2 1 और ये दिस इज 32 U. यूनिट कितनी होगी U. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट देम. कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास. मासेस ऑफ जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन गिवन टू यू. तो जिंक ऑक्साइड के लिए Zn 65 प्लस 16, Na2O के लिए 23 इंटू 2 प्लस 16, पोटेशियम कार्बोनेट के लिए 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3. So in this way you can solve these problems. Now come to the next topic is mole concept. Mole concept में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ही सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश कीजिए. मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. ठीक है, उसी तरह मोल कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है. ये एक ट्रायंगुलर रिलेशन है. 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23. ठीक है, और इतने पार्टिकल्स का मास जो है वो कहलाता है मोलर मास. और मोलर मास को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास रिटन इन ग्राम, यानी यूनिट हटा के हमने क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, यानी कि हमने यू हटा के ग्राम लिख दिया केवल. तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल और मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स. इसी की अंडरस्टैंडिंग को हम मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल आपको हाइड्रोजन का H2 का ये ट्राइंगल बनाना है, तो आप क्या करोगे? 1 मोल हाइड्रोजन में पार्टिकल नंबर होगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23. इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ 1 इंटू 2 यानी 2U. उसकी जगह आपको क्या लिखना है? U की जगह ग्राम. सो 2 ग्राम, यानी कि 1 मोल का मोलर मास, 1 मोल हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम होगा और उसमें पार्टिकल का नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होगा. वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस वन. ये हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्राइंगल बना रहे हैं. तो 1 मोल और पार्टिकल नंबर एज यूजुअल 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. जो स्पीसीज यहाँ ले रहे हैं वही स्पीसीज का नंबर है ये. ठीक है, अब यहाँ पर मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना होता है? 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 U. तो U हटाएंगे, ग्राम लगाएंगे, तो मोलर मास हो गया 44 ग्राम. ठीक है, सो इन दिस वे यू विल प्रिपेयर दिस वन एंड दिस इज द मोल कॉन्सेप्ट. बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखिए यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे शो की है, कुछ एग्जाम्पल लिए. ये भी वही ट्राइंगल मेथड है. 1 मोल कार्बन एटम्स. ठीक है, तो यानी कि आप किसका ट्राइंगल बना रहे हैं? कार्बन एटम्स का ट्राइंगल बना रहे हैं. ठीक है, स्क्रीन पे आपने देखा अभी. तो कार्बन लिख लिया, 1 मोल हो गए, पार्टिकल नंबर हो गया 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 और मोलर मास हो गया 12 ग्राम. देखिए यही है. नेक्स्ट 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स. हमने किसका बनाया था? H2 गैस का. अब बनाना है एटम्स का. तो क्या हो जाएगा? दिस इज 1 हाइड्रोजन एटम्स. तो दिस इज 1 मोल. पार्टिकल नंबर यानी एटम नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 और मोलर मास हो गया 1 ग्राम. ठीक है, इस तरीके से इनको करेंगे. 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, यानी हमने क्या कंक्लूजन निकाला? 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, चाहे वो एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम. उनका मास ग्राम में लिखेंगे जिसको हम मोलर मास कहते हैं. और पार्टिकल नंबर सब में बराबर होगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23. मॉलिक्यूल्स लेंगे तब भी वही होगा. और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे you can prepare the triangle, or that is triangle is nothing, it is a formula. ठीक है, it is a formula for you, or with the help of this formula you can calculate all the problems, or you can solve all the problems. Now we are taking the problems and one by one we will discuss them. Thank you.